Here you see. Good. Question number 10, exercise 9.5. Exercise 9.5, question number 10. Your question is 1 plus e to the power x upon y dx plus e to the power x upon y 1 minus x upon y dy is equal to 0. हम dy से डिवाइड करें दोनों तरफ तो dx upon dy प्लस e की पावर x upon y 1 minus x upon y is equal to 0. तो dx upon dy को इधर रखो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में ट्रांसफर करो तो e की पावर x upon y माइनस ट्रांसफर हो जाएगा x upon y 1 minus x upon y upon 1 plus e to the power x upon y. अब ध्यान में रखना dx upon dy हम इसको dy dx लेना भी चाहें अगर इसको रिवर्स भी कर दें तो dy dx is equal to 1 plus e to the power x upon y. तो इधर अगर dy dx होगा लेकिन यहाँ पे क्या होगा x upon y ही रहेगा तो इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होती है। इस नाते इसको हम करते क्या हैं कि अगर यहाँ पे x upon y है तो यहाँ भी x upon y रहेगा, इस नाते यहाँ पे dx upon dy लिखते हैं। तो पुट x is equal to by वहाँ पे y is equal to vx लिखते थे, यहाँ x is equal to vy डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y। तो dx upon dy is equal to फर्स्ट फंक्शन dy y के रिस्पेक्ट में y 1 हो जाएगा v प्लस y dv by dy। ये हमारा हो जाता है यही इसको dx upon dy equal to this much. Put the value of dx upon dy in this equation. So ये 1 है dx put in 1 लिखेंगे, put in 1 में अगर हम पुट कर दें then what we get here dx upon dy यहाँ पे है, in place of dx upon dy v plus y dv by dy v plus y dv by dy is equal to minus e की पावर x upon y 1 minus x upon y। और क्या करना है x is equal to vy भी पुट करना है अपॉन 1 प्लस e की पावर x upon y। पुट हमें करना है पुट x is equal to vy ना, तो x is equal to vy हम पुट करेंगे x is equal to vy। तो पुट x is equal to vy अगर पुट करें इम्प्लाई दैट v plus y dv dy it is minus e to the power x vy upon y और ये 1 minus vy upon y upon 1 plus e to the power x upon y vy upon y cancelled out there and this implies we have minus EB 1 minus V by 1 y dv dy it is y cancelled out minus e की पावर v और y cancelled 1 minus v upon 1 plus V 1 plus e to the power V। और ये वैल्यू हमारे पास हो जाती है अगर हम माइनस इतना तो हो गया therefore implies that y dv dy it is equal to इसको माइनस अंदर ले जाओ तो v minus 1 e to the power v upon 1 plus e to the power v minus v। अब देखो कुछ कैंसिल होगा यहाँ पे, हाँ तो वैल्यू हमारे पास this implies that y
इक्वल टू v e टू द पावर b माइनस, और ये हो जाएगा माइनस b और माइनस v e टू द पावर b, क्लियर, अपॉन 1 प्लस e to the power b. v to the power b minus it will cancel out, and therefore this implies that y dv dy it is equal to minus v plus e to the power b upon 1 plus e to the power b. Is it clear? Now variable by the variable separable, we find that here minus dy upon y, here you see, this implies that 1 plus e to the power b upon v plus e to the power b dv minus dy upon y. Is it clear? Integrating both sides, what we get here, integrating here first v plus e to the power b it is equal to LHS में t को पुट करो तो 1 प्लस e की पावर b dv इट इज इक्वल टू dt, तो dt अपॉन t, क्लियर, ये dt अपॉन t इट इज LHS का है, इट इज log t, और log t इट इज इक्वल टू log in place of t v plus 1 plus e to the power b, ये हमें मिल जाएगा इधर log, और इधर मिलेगा, और RHS में इट इज इक्वल टू माइनस log y और प्लस log c डिजिविटी, ध्यान रखो, क्लियर, दोनों सम log रहेगा तो हम सबको log लिख सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, नौ माइनस log y को हम इधर ट्रांसफर अगर कर लेते हैं तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी, हियर log v प्लस e टू द पावर b प्लस log y it is equal to log c. So here log y v plus e की पावर b it is equal to log c. Here you see log cancel out और v is equal to हमारे पास x y है, तो वैल्यू मिलेगी v is equal to x y, तो कैंसिल हो जाएगा y और y v plus e to the power b it is equal to c, clear. So log v की वैल्यू हम लिखेंगे, पुट y v is equal to x by y, हाँ, तो v is equal to हमने लिखा था x अपान, तो v की वैल्यू हमने क्या लिखा था, x is equal to by, x is equal to by पुट किया था, तो v is equal to x अपान y, तो y x upon y e to the power x upon y is equal to c. y को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा x प्लस e to the power y e to the power x upon y it is equal to c. ये हमारे पास है। Is it clear? ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है, देखने में बड़ा है, देखने में। Is it clear? Yes, sir. One more question here. Question number 7 हमारे पास है। Here you have x cos y upon x supreme. x cos y upon x है, ध्यान रखना, हाँ, यहाँ डिवाइड dx ही लगेगा, प्लस y साइन, हाँ इधर आओ, x upon y
y dx is bracket close. This is equal to y sin y upon x minus x cos y upon x. x cos y upon x और फिर ब्रैकेट के बाहर x dy। अब देखो क्वेश्चन बड़ा है लेकिन कठिन नहीं है। इसमें देख लेना एक बार 6 since it is y upon x everywhere, so we will take the y upon dx dy dx। तो क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो dy dx होगा और सबको इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा इधर। तो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास हियर, इसको उधर ले जाओ तो यहाँ पे y अपॉन x हो जाएगा बाहर। देखो x को इधर ले आते हैं y अपॉन x और dy dx। तो dy dx इट इज इक्वल टू, इसका सॉल्यूशन देखना, dy dx इट इज इक्वल टू ये हमारे पास y अपॉन x और ब्रैकेट में x cos हमारे पास हो जाएगा y अपॉन x तो होगा ही, यही हो जाएगा ना, इसी के लिए अपॉन में आ जाएगा x cos y अपॉन x प्लस y sin y बाई x और एक ब्रैकेट हमारे पास क्लोज होगा अपॉन y sin y बाई x माइनस x cos y अपॉन x, ऐसा होगा। ये हमारे पास नहीं, वो x अपॉन y ये y dx है, तो इसको y को अगर हम x को इधर ट्रांसफर कर देंगे ये y अपॉन x आई डी बाई डी, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये y अपॉन x सही है, y अपॉन x डिनोमिनेटर में भी रहे तो क्या फर्क पड़ेगा, ऐसे करेंगे तो y ऐसे ये दिस इज द dy dx, तो y इज इक्वल टू dx पुट करेंगे, y इज इक्वल टू dx। यहाँ पे y अपॉन x आ रहा है, अगर इसमें हम x से डिवाइड भी करें और इसमें या x कॉमन ले लें, सर डायरेक्ट रख देते वैल्यू। हाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, पुट y इक्वल टू dx, तो dy dx इट इज इक्वल टू b प्लस x dv dx, क्लियर। और now put in this equation we find that now the dy dx के प्लेस पे लिखेंगे b प्लस x dv dx, it is equal to y is equal to bx, so bx x cos vx upon x plus y equal to vx sin vx upon x अपॉन डिनोमिनेटर में हमें x मिलेगा, y के प्लेस पे vx sin vx अपॉन x माइनस x cos
वी एक्स अपान एक्स सर x प्लस b प्लस b। अब ये कटना शुरू होगा कुछ न कुछ, ये एक्स तो गया ही, कोई बात नहीं, ये सब चला गया और ये भी चला गया, ये भी चला गया। देखो, इम्प्लाई दैट b प्लस एक्स dv dx it is equal to v अंदर ले जाओ, v x cos b प्लस v स्क्वायर x sin b अपान v x sin b माइनस x cos b। अब x कॉमन हो रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, सो वी कैन राइट एज हियर v cos b प्लस v स्क्वायर sin b, v स्क्वायर sin b अपॉन v sin b माइनस cos b। क्लियर? दिस इंप्लाइज दैट हमारे पास हो जाएगा एक्स डी वी डी एक्स, दिस इज वी cos b प्लस v स्क्वायर sin b अपॉन v sin b माइनस cos b माइनस v। ध्यान, क्लियर? अब हम इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है इट इज इक्वल टू b cos b, एक्स को कैंसिल कर दिए ना, एक्स विल बी कैंसिल, सो v cos b हियर प्लस v स्क्वायर sin b माइनस v के साथ v स्क्वायर sin b, v स्क्वायर sin b प्लस v cos b अपॉन v sin b माइनस cos b। ये देखना है चला गया, ठीक, और ये v sin b माइनस v cos b, ऊपर 2v cos b हो गया ना। Therefore this implies that x dv dx it is equal to 2v cos b अपॉन v sin b माइनस cos b। अब इसमें वेरिएबल सेपरेबल हम करेंगे। नाउ by using the concept of variable separable, here v sin b minus cos b, v sin b minus cos b upon 2b cos b, it is dv, this is equal to dx upon x, dx upon x। अब हम इसको सेपरेट कर डालेंगे, देखना दिस विल बिकम इजी, एंड हियर v sin b, अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो v sin b अपॉन 2b cos b माइनस cos b अपॉन 2b cos b dv, इट इज dx अपॉन x। अभी हम इंटीग्रेट नहीं कर, देखते हैं किस तरह का इंटीग्रेशन मिलता है। सर 2 बाहर कर लीजिए, ये तो हमारे पास चला गया ना, ये भी चला गया, हाफ tan b माइनस 1 अपॉन b, ये हो गया dv छोटा, इट इज इक्वल टू dx अपॉन x। अब देखो इसका मतलब दोनों तरफ लाग ले सकते हैं क्योंकि सब लाग में आ रहा है।
हाफ आ रहा है, हम चाहें तो 2 को उधर ट्रांसफर भी कर लें, ये वैल्यू हो जाएगी। देखना इसका इंटीग्रेशन tan x का होता है माइनस log cos x, माइनस log cos b, ध्यान माइनस log cos b, माइनस log b, ये भी ध्यान रखो। इट इज इक्वल टू 2 log x प्लस c, 2 log x, 2 log x log c को प्लस log c, इसीलिए छोड़ सकते हैं। देखो अच्छा, माइनस log cos b और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, माइनस को हम माइनस log cos b माइनस दिस मच, तो माइनस ब्रैकेट में कॉमन में log cos b, तो हो जाएगा v cos b, ठीक है। इट इज माइनस log v cos b और इट इज इक्वल टू log x स्क्वायर c, ऐसा लिख सकते हैं, log x स्क्वायर c, ये log x स्क्वायर प्लस log c, log x स्क्वायर c। इसको हम थोड़ा सा 1/b में कर सकते हैं। नाउ यू सी दिस कैन बी रिटन एज 1/, इसको अगर हम माइनस को अगर इसके पावर में लिखें तो ये हो जाएगा log, इसको लिख सकते हैं log 1/v cos b, इट इज इक्वल टू log c स्क्वायर x स्क्वायर c, log अब कट कैंसिल होगा, सो 1/v cos b, 1/v cos b, इट इज इक्वल टू x स्क्वायर c, और v के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, y बाई x, तो y 1/y अपॉन x cos y अपॉन x, it is equal to x square c, and we find here x ऊपर ले जाओ तो x अपॉन cos y अपॉन x, इट इज x स्क्वायर c, x चला गया तो हमारे पास मिल जाता है, इसको इधर ले जाते हैं x y cos y बाई x, इट इज इक्वल टू 1/c, 1/c को भी हम बाद में c डैश करके कांस्टेंट ही ले लेते हैं, या पहले से c डैश नहीं करके रखे रहे तो c डैश, अगर इसको c डैश करके रखे रहेंगे तो ये 1/c डैश, और इसको हम बाद में ले लेते हैं, यही हमारे पास मिल जाता है x y cos y बाई x, इट इज इक्वल टू c, यही हमें रिजल्ट मिलता है। और देख लो शायद क्या आ रहा है, यही है, तो ये देखने में बड़ा था लेकिन इसका इंटीग्रेशन इजी था। हाँ, तो यही है इस पे, क्या मिनट बचा, 10 मिनट और एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन करते हैं। ये देखो दिया हुआ है कि फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन। हियर क्वेश्चन नंबर 11 यू कैन सी 13, अच्छा 13 है, देखो 13 में भी देख लो, x साइन स्क्वायर y अपॉन x माइनस वाई डी एक्स प्लस x डी वाई। देखना क्वेश्चन नंबर 13 में देखो पर्टिकुलर सोल्यूशन, ये तो हमारा जनरल इक्वेशन था, जनरल सोल्यूशन, और पर्टिकुलर सोल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 यू कैन सी हियर x sin स्क्वायर y अपॉन x sin स्क्वायर y अपॉन x माइनस y
प्लस एक्स डी वाई है, प्लस एक्स डी वाई। It is dx. X sin y upon x minus y dx। तो हमारे पास ये y upon x है, इसलिए dy dx ही लगेगा। चलिए y इक्वल टू क्या लिखे हैं? देखो y upon x minus y dx plus x dy इक्वल टू 0। इसमें दिया हुआ है कंडीशन x इक्वल टू 1 y इक्वल टू पाई बाई 4। अब करेंगे क्या? हाँ, उसको ट्रांसफर करो माइनस डी बाई डी एक्स, तो वैल्यू हमारे पास हो जाएगा। इसका सोल्यूशन देखो, माइनस वाई डी एक्स, इट इज माइनस एक्स डी वाई, और डी बाई डी एक्स हमारे पास हो जाएगा, implies that dy dx, हाँ dy dx इट इज इक्वल टू, माइनस के साथ अगर ले जाए तो y माइनस एक्स साइन y बाई एक्स अपॉन एक्स। साइन स्क्वायर है, क्वेश्चन में साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर है, अच्छा एक्स साइन स्क्वायर, ठीक है, कोई नहीं, ये हमें इस फॉर्म में आ जाएगा कि माइनस एक्स था ना, माइनस हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो y माइनस इस फॉर्म में आ गया। पुट y इज इक्वल टू वी एक्स डी बाई डी एक्स, इट इज v प्लस एक्स डी बी डी एक्स। क्लियर? अब इसको हम लोग सेपरेट कर दें, अभी कुछ इसको वी एक्स के बाद में बहुत कुछ कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू अच्छा, v प्लस एक्स डी बी डी एक्स इट इज इक्वल टू v प्लस एक्स, तो हमारे पास इसको मिल गया, और यहाँ पे y के प्लेस पे वी एक्स, तो वी एक्स माइनस एक्स साइन स्क्वायर वी एक्स अपॉन एक्स अपॉन एक्स। देखो
दिस इम्प्लाइज दैट x तो कैंसिल हो रहा है। यस सर, दोनों में सेपरेट कर देंगे तो हाँ, तो वैल्यू हो जाएगी x प्लस v प्लस कॉमन लेते x dv dx। दिस इज इक्वल टू हैं v माइनस साइन स्क्वायर v dx। ना, एक्सेस गया। अब बड़ा सिंपल सा हो गया, v कैंसिल हो गया ना। कैंसिल हो जाएगा। So x dv dx it is equal to minus साइन sin स्क्वायर square v। और देखो जरा अब सर dx अपॉन x dv अपॉन sin square v माइनस dx अपॉन x इससे स्क्वायर v कासेक स्क्वायर कासेक स्क्वायर v dv इट इज इक्वल टू माइनस, अभी हमारे पास हो जाएगा माइनस लॉग x, मतलब इसको भी dx अपॉन भी v रहते हैं कर लेते हैं। अब ये देखो कासेक स्क्वायर v माइनस काट माइनस क्वार्टर माइनस काट v इट इज इक्वल टू माइनस लॉग x माइनस लॉग x प्लस c प्लस c। अब इसको log x को हम इधर ले आए तो हमारे पास ये हो जाएगा लॉग x माइनस क्वार्टर हाँ log x माइनस काट v, थोड़ा लिखने में ठीक रहेगा। इक्वल टू c। अब c, अब v इक्वल टू क्या पुट करेंगे, y इक्वल टू vx y by y x by x, तो log x प्लस माइनस काट y by x y by x इज इक्वल टू c। अब हमें पुट क्या करना, y इक्वल टू पाई बाई यही पर्टिकुलर सोल्यूशन, कांस्टेंट को इवेलुएट करना है। x इज इक्वल टू 1 तो ये हो जाएगा log 1 माइनस काट y की प्लेस पे पाई बाई 4 तो y by 4 और x को 1 पुट करो, x को 1 हो गया। और हमारे log 1 की वैल्यू 0 हो गई, माइनस 1 इट इज इक्वल टू c। c इक्वल टू यही वैल्यू हो गया, और उठा के हम यहाँ पे पुट कर दें तो हमें वैल्यू मिल जाएगी सोल्यूशन log x माइनस काट y by x इट इज इक्वल टू माइनस 1, तो प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं, यही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही इसको पर्टिकुलर सोल्यूशन करते हैं। क्या ठीक, आराम होनी, यही क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। इसको आप